جی سسٹر. خدا ان کی تعریف ہو. تعریف ہو. خدا ان کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان کے عظیم نام کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے فضل کے لیے، اس نے آج پھر ہمیں موقع بخشا تھا کہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک اہم بات سیکھیں گے. تو آئے میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 20ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. اگر شروع سے 19ویں آیت سے پڑھ لیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. آمین. خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے، کلام کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. تو مسیح کے پاس آنے سے پہلے ہر کوئی جو شخص تھا وہ کسی نہ کسی چیز کا غلام تھا. ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں مختلف چیزوں کے غلام ہیں. جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے. پھر پولس رسول جو ہے رومیو کے خط میں بھی یاد دلاتے ہیں کہ کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. پھر پطرس جو پولوس ہے تیتس کو لکھتا ہے، کہتا ہے کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے. کلام بیان کرتا ہے کہ کس طرح ایک انسان جو ہے یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے، یسوع مسیح میں آنے سے پہلے کس چیز کا غلام تھا. سب سے بڑی بات کہ اگر وہ کسی اور چیز کا غلام نہ ہو لیکن وہ گناہ کا غلام ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں کون سا کسی بہت برا کام کر رہا ہوں، بری میری باتیں جو ہیں میری زندگی میں ہیں. لیکن کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. گناہ کی غلامی ہمارے اندر تھی، ہم گناہ کے غلام تھے. تو کلام بیان کرتا ہے کہ ہم جو ہے غلامی کی حالت میں تھے. تو اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں تو غلام جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بھی خدا کا غلام کہتے تھے. تو غلام کا جو مطلب ہے یہاں پر بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں 125 بار اس کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر مرتبہ یہ جو لفظ ہے ایک ایماندار اور خدا کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص کے لیے بیان کیا گیا ہے. اور پھر دوسرا جو لفظ ہے وہ بھی خدا کے لوگوں کے لیے استعمال کیا، شاگرد. وہ بھی تو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو لفظ میتھلسٹ ہے وہ بھی اناجیل میں اور اعمال کی کتاب میں بیان ہوا ہے، جو کہ دوسرے لوگوں نے ایمانداروں کو بیان کرنے کے لیے، ایمانداروں کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کیا، اور وہ ان کو شاگرد کہتے تھے اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جبکہ جو ڈولاس ہے یہ لفظ جس کا مطلب ہے زر خرید، غلام سے خریدے گئے ہو، یعنی ہم زر خرید غلام ہیں. تو یا ایک خدا کا بندہ وہ بیان کرتا ہے، کہتا میں جب خدا کی خدمت کر رہا تھا لیکن ایک ٹائم زندگی میں ایسا آیا کہ میری وائف، میرے بچے وہ سارے ہاسپٹلائز تھے، بیمار تھے، کسی کو کوئی پرابلم تھا، کسی کو کوئی پرابلم تھا. لیکن ہوا یہ کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ہاسپٹل کے جو بل ہیں وہ ادا کر سکتا. کہتا بڑے مسائل کا سامنا تھا، میں مشکل میں تھا، پریشان تھا، دعا کر رہا تھا. تو خدا نے مجھے یہ لفظ دیا
डुओलॉस कहता मैं ने इस पे मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब है, जर खरीद गुलाम क्यों खुदा ने कहा है, जर खरीद का क्या मतलब है। कहता मैंने इस पर सर्च करना शुरू की कि जर खरीद क्यों खुदा ने कहा है, क्यों ये बात कही है। तो मुझे ये खुदा ने बताया कि जर खरीद जो होता है वो क्या होता है। जर खरीद जो शख्स होता है, गुलाम होता है, वो उसकी जिम्मेदारी जो होती है मालिक पर होती है। कहता जब खुदा ने ये बात मुझे बताई, समझाई कि तूने परेशान नहीं होना, क्योंकि डुअल लॉस का मतलब एक बिल्कुल वाजे है कि वो शख्स वो जर खरीद गुलाम है। यूनानी लोग जो थे इस लफ्ज को किसी शख्स के लिए बेइज्जती या मजाक समझते थे और मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और यूनानी लोग जो थे वो फारसियों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए फारसी लोग जो थे वो गुलाम होते थे। और यूनानी लोग अपने आप को डेस्पोटॉई कहते थे, यानी वो जिसने गुलाम को खरीदा हो, अपने वो शख्स जिसने गुलाम को खरीदा हो। और एक शख्स जो है मुफस्सर जो है अपने मजमून में लिखता है, कहता है डुअल लॉस का मतलब यानी जर खरीद जो गुलाम है, इसका मतलब है कि ऐसा काम करने वाला शख्स जो मजबूरन कोई काम करता है, चाहे वो उसे पसंद करे या ना करे, वो अपने मालिक की मर्जी को पूरा करता है, अपने मालिक को खुश करता है। फिर नए अहदनामे में हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो मुसन्निफ खतूत का जो मुसन्निफ अपने आप को गुलाम कहते थे, बंदा कहकर बुलाते थे, डुओलॉस कहते थे। जैसे कि हम रोमियो के खत में इसके पहले बात की पहली आयत में देखें तो वहां पर पौलुस बयान करता है कि पौलुस की तरफ से जो यस्सु का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया। फिर आगे भी खतूत में गलतियों के खत और सिस्टर आपका हाँ माइक ऑफ हो गया, प्लीज उसको ऑन करें। जी सॉरी। तो पौलुस जो है वो अपने आप को बंदा कहता है, गुलाम कहता है। फिर यीशु मसीह मसीह का जो बंदा है पौलुस और तिमोथियुस की तरफ से बयान करता है। फिलिपियों के खत में भी, वहां पर भी वो अपने आप को बंदा कहते हैं। फिर कुलसियों के खत में भी इफरास जो है कहता है वो जो मैं तुमसे, इफरास जो तुम में से है और मसीह यीशु का बंदा है। और तिमोथियुस भी कहता है कि और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे। यहाँ पर हम अगर हम मुख्तलिफ खतूत में देखें तो बंदा जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मुकाशफा की किताब में भी मसीह के गुलामों को लिखा गया है। मुकाशफा की किताब में यूहन्ना आरिफ जो है अपने आप को, उन सबको जो इस यीशु नाम से कहलाते हैं उनको गुलाम कहते हैं। फिर कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें तो आज के जो जदीद मसीही हैं, जदीद दौर में मसीही हैं, वो अपने आप को गुलाम के रूप में नहीं देखना चाहते। वो नहीं कहते कि गुलाम, बल्कि वो दफा हम जो हैं वो अपने आप को मुख्तलिफ अपने मैसेजेस में भी गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम लोग। लेकिन अपने आप को हम बादशाह के लोग, बादशाह के बच्चे जो है फरजंद कहना जर खरीद गुलाम होने से ज्यादा पसंद करते हैं। और यही बातें तिमोथियुस कहता है, पौलुस रसूल को हिदायत करता है कि कहता है क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम को बर्दाश्त ना करें, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के माफिक बहुत से उस्ताद बना लें। तो खुदा जो है वो चाहता है कि हम अपनी हैसियत को जाने कि क्योंकि क्योंकि खुदा चाहता है, क्योंकि मसीह की जो गुलामी है, मसीह में हम जो रहकर खुदावंद की साथ ताल्लुक रखते हैं, वो एक फर्क बात है। कलाम कहता है कि अगर हम देखें लूका की इंजील उसके 17वें बाब में, तो वहां पर भी लिखा है कि किस तरह एक जो नौकर है कहता है कि अपनी मगर मैं तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गला बानी करता हो, खाना खाने बैठ और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं, कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, इसके बाद तू तू खा पी लेना।
सॉरी थोड़ा नेट स्लो है तो इस वजह से ऐसे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस तमसील में यीशु मसीह जो है वो बयान करते हैं कि हमारी जो हैसियत है, हमें किस तरह अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करना। हाँ, हम खुदावंद के फर्जंद हैं, खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, उसकी बादशाही के फर्जंद हैं, लेकिन हमें चूंकि उसने खरीदा है, हमें उसने बुलाया है, तो और खुदावंद चाहता है कि वो तुम मुझे मालिक तस्वर करो, मालिक जानो। और चूंकि हम ज्यादातर समझते हैं कि शायद मैं गुलाम या इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो मेरे लिए बेइज्जती की बात है, लेकिन कलाम कहता है कि हम गुनाह के गुलाम थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें गुनाह की गुलामी से निकाला, हमें आजाद किया है। करंचियों के खत में अगर छठे बाब में 19वीं 20वीं आते हैं, यहाँ पर भी हमने देखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ तुमको खुदा की तरफ से मिला। खुदावंद की शुक्रगुजारी है, अगरचे हम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्मा बरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो। कलाम ये बयान करता रोमियो के खत में। और खुदा की रहमत की निशानी ये है कि उसने इंसान को अपना जो है उसने एक जगह इंसान को मुहैया कर दी है कि हम जो है खुदा बाग को अपना बादशाह तस्लीम करें। और फिर कलाम कहते हैं कि अगर हम देखें तो हमारा जो आका खुदावंद है, उसने हमें अपना खून देकर जो है वो हमें बहाल किया, हमें छुड़ा लिया है, उसने खरीद लिया है और हमसे मोहब्बत रखी है। हम बाइबल मुकद्दस में ये आयत बहुत पढ़ी जाने वाली आयत है, यूहन्ना 3:16 तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदावन चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी मुकद्दस में ईमानदारों को बेटे, नौकर, गुलाम और दोस्त, पासबां, बादशाह और रूहुल कुद्स का मकदस कहा गया है। तो खुदा चाहता है कि हम ये सारे जो रिश्ते हैं, ये सारे रिश्तों में हम खुदा के साथ एक मखसूस पहलू जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं। और खुदा चाहता है कि हम किस तरह उसके साथ व्यवस्था हो सकते हैं, किस तरह उसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कलाम में हमें वाज़ेह नजर आता है कि तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा के का एक पाक जो है वो मुकाम होने के लिए बुलाए गए हो। फिर मसीह का जो गुलाम होता है वो अपने मालिक की मर्जी जानने का मुश्ताक होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। और जो एक खरीदा हुआ शख्स होता है, एक गुलाम जिसका भरोसा अपने मालिक पर होता है, वो चाहता है कि क्योंकि उसको जब पहले दौर में जब गुलाम हुआ करते थे तो वो उसका जो सारा डिपेंड होता था अपने मालिक पर होता था। तो यीशु मसीह भी जिसने हमें खरीद लिया है, हमें बचा लिया है, अपनी मलकियत होने के लिए बुलाया है, तो एक गुलाम जो होता है वो अपने मालिक की मर्जी जानने का मुश्ताक होता है कि मेरा मालिक जो है वो क्या चाहता है, कि मैं क्या करूं। तो खुदावंद भी हमें ये चाहता है कि हम भी उसकी मर्जी को जाने। तो कलाम में कहता है, लिखा हुआ है रोमियो का खत उसके 12वें बाब की पहली 2 आयत में, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जो गुलाम है वो खुदा की मर्जी को जानता है, उसकी मर्जी को पूरा करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि
किसी ना किसी तरह से मैं अपने मालिक की, अपने आका की मर्जी को पूरा कर सकूं। तो इसीलिए कलाम भी कहता है कि उसकी मर्जी को जान सके, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए हम दे दें ताकि हम खुदा की मर्जी को जान सके। फिर जो गुलाम होता है, एक जिसको उसके मालिक ने बचाया होता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो मालिक पर होती है, वो उसकी जो ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह से अपने मालिक की मर्जी को पूरा करे। और उसकी मर्जी हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि हम उसकी मर्जी को किस तरह पूरा करते हैं। कलाम मुकद्दस जो है, ये जो लिखी हुई सूरत में हमारे पास मौजूद है, हम उसकी मर्जी को कलाम मुकद्दस के जरिए से भी हासिल कर सकते हैं, जान सकते हैं। रोजाना दुआ के जरिए बाइबल मुकद्दस का मुताला करने से भी हम उसकी मर्जी को जान सकते हैं। तो एक गुलाम जो है वो अपनी मालिक की मर्जी को उसके दिए गए हुए एक तौर तरीके से वो जान सकता है, वो उसकी जो हदायत है उसके जरिए से वो जान सकता है। फिर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जो मसीह का गुलाम है वो खुदावंद मसीह पर जो है वो इन्हिसार करता है। याकूब के खत में लिखा है कि तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक वर्ष ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुखारात का सा हाल अभी नजर आए, अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदा चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो, ऐसा सब फख्र बुरा है। तो एक मसीह का जो गुलाम है या मसीह का बचाया हुआ बंदा है, वो अपने मालिक पर, अपने आका पर इन्हिसार करता है। ये नहीं कहते हम कि हम कोई प्लानिंग ना करें, बल्कि हमारा जो डिपेंड है, हमारा जो भरोसा है, ट्रस्ट जो है वो खुदा पर होना चाहिए ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकें, हम उसके इरादे को जान सकें, उस पर ट्रस्ट कर सकें। कई दफा हम बहुत से मसाइल में हम अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं कि शायद मैं अपने पैसे के जरिए, अपनी काबिलियत के जरिए से सिस्टर को हाँ खुदा चाहता है हम उसकी मर्जी को जाने। फिर जो मसीह का एक गुलाम है वो इकरार करता है कि उसकी जो तमाम खूबियां हैं उसके मालिक की अता करता है, उसके मालिक ने उसे दी हुई है। क्रंथियों के खत में पहले खत में ही उसकी चौथे बाब की 7वीं आयत में भी लिखा है कि तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई, और जब तूने दूसरे से पाई तो फख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई। तो हम जितनी भी हमारे अंदर काबिलियत है, स्किल्स हैं, या कुछ चीजें हम सीखते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें जो हैं वो खुदा ने हमारे अंदर रखी हुई हैं। हमारी आवाज हो सकती है, हमारा करैक्टर भी हो सकता है, हमारी बहुत सी चीजें कि मैं कलाम अच्छा सुना सकता हूँ, मैं और भी बहुत सी चीजें, कुछ हम ट्रेनिंग करते हैं, कुछ हम सीखते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिनको खुदा ने हमारे अंदर रखा हुआ है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक खरीदा हुआ जो शख्स होता है उसको पता होता है कि उसकी जो खूबियां हैं, उसके अंदर जो स्किल्स हैं, उसकी जो खासियत है, वो उसके मालिक की अता करता है, उसके मालिक ने उसे अता की हुई है। क्योंकि हमें फख्र नहीं करना, अगर फख्र करना है तो मसीह पर करना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि जितनी भी चीजें मेरे नफे की थी सबको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। मैं किसी चीज पर फख्र नहीं करता क्योंकि मेरा फख्र जो है वो मसीह है। तो हमें जो है वो मसीह पर फख्र करना है ताकि हम मसीह की जो उसने हमें सारी वो खासियतें दी हैं, सारी खूबियां जो दी हैं, सारे टैलेंट्स जो दिए हैं उसने हमें बख्शे हैं, वो सारी जो है खुदा की तरफ से अता करते हैं। तो जरूर है कि हम खुदा पर भरोसा करें, हम खुदा के नाम को जलाल दें, उसकी ताजीम करें, उसकी सिताइश करें कि उसने ये सारी चीजें हमें अता की हैं, ताकि हम खुदा पर हमेशा भरोसा करने वाले बने। और जो मालिक है वो वही हमारी जो है वो हमसे सख्त मेहनत की तवक्को करता है।
कलाम बयान करता है कुलसियों के खत में उसके 3 बाब की 17वीं आयत में, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र गुजार। मसीह का जो एक खरीदा हुआ शख्स है, जर खरीद जो गुलाम है, उसको चाहिए कि अपने मालिक जो चाहता है उसकी जो तवक्को है उसके मुताबिक मेहनत करे। अगर हम देखें, हम तमसील पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में ये बहुत ज्यादा मशहूर करते हैं कि एक जिसको एक तोड़ा मिला और फिर जिसको दूसरे एक को एक तोड़ा मिला, वो भी पास आकर कहने लगा, कहते अगर हम इसको पढ़ लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तमसील है 3 मुलाजमों को जो है 5, किसी को तोड़े देता है, किसी को 2 देता है और किसी को 1 देता है। इस पर अगर हम गौर करें तो वहां पर भी जिस शख्स ने वो तोड़ा जो था, जिसके पास 1 तोड़ा था, उसने दबा दिया, लेकिन हम इसके उस रवैये पर के वो कहता है कि जो मेरा मालिक जो है वो सख्त है, वो मुझसे हिसाब लेगा, तो खुदावन जो है वो हमसे हिसाब तो लेगा, क्योंकि उसने हमें जो मेहनत करने के लिए काम उसने दिए हुए हैं, जितने भी तोड़े दिए हुए हैं, वो खुदा चाहता है कि हमसे मेहनत ले। क्योंकि कलाम में हम देखते हैं इस तमसील में कि किस तरह उसको एक शख्स जिसको 5 तोड़े दिए गए और जिसको 2 तोड़े दिए, और जिस तीसरा जो शख्स था उसको 1 दिया, तो कहता है कि मैंने वो तोड़ा जो तूने, अपने मालिक से कहता है जो तूने दिया था वो मैंने छुपा दिया, क्योंकि मेरा मालिक इस तरह का है, वो डांटेगा, उसका रवैया ऐसा है। तो हम जो है कई दफा अपनी नाकामी की वजह से, नाकामी के से खौफजदा होते हैं कि कहीं मैं इसमें नाकाम ना हो जाऊं, कहीं मैं अपनी मेहनत में नाकाम ना हो जाऊं। तो खुदा चाहता है कि जो काम उसने हमारे सुपुर्द किया है हम उसको करें। अगर हम मूसा के नूह के बारे में पढ़ें बाइबल मुकद्दस में, तो उसने 120 साल खिदमत, खुदावंद का काम करता रहा, कश्ती भी बनाई, सारा कुछ उसने खुदा के मर्जी के साथ किया। लोग उसको उस पे उसका मजाक भी उड़ाते थे कि ये क्या कर रहा है, ये शख्स क्या कर रहा है, शायद पागल हो गया है, बहुत सी बातें उसको सुनना पड़ी होंगी। लेकिन उस शख्स ने इतनी मेहनत की, और हम देखते हैं कि सिर्फ उसका खानदान बचा, सिर्फ उसका खानदान, कोई दूसरा शख्स नहीं, क्योंकि सब मजाक उड़ा रहे थे और अपनी ही वो उसमें लगे हुए थे, लगन में लगे हुए थे कि शायद ये शख्स जो है वो पागल हो गया है, क्योंकि हमें कहीं भी तूफान या कहीं भी बारिश आती हुई नजर नहीं आ रही, कहीं भी सैलाब नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये शख्स जो है वो कश्ती बना रहा है। उस शख्स ने, उसने, नूह ने मेहनत की, खुदा ने उसकी मेहनत को चेक किया, और मालिक जो है वो चाहता है कि जिसको उसने खरीदा हुआ है उसकी मेहनत को देखता है कि कितनी वो मेहनत करता है, या है वो उसको करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है या कितना बड़ा हमारा वो इलाका है, कितना वो एरिया जिस पर हम काम करें, ये एक अलग से बात है। लेकिन खुदा चाहता है हम कितना खुदावन के हुजूर में झुकते हैं, हम कितना खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, कितना हम मेहनत करते हैं कि हम खुदा के लायक ठहर सके, खुदा की मर्जी को पूरा कर सके। मेहनत भी चाहता है और साथ में हमारा ताल्लुक भी जाता है। हम अगर देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे खादिमीन हैं, बहुत बड़े बड़े खादिमीन हैं जो कि अपनी खिदमत में मगन हैं, लेकिन खुदा को टाइम नहीं दे सकते। खुदा को टाइम देना उनके लिए बहुत मुश्किल काम। एक खुदा के खादिम है, बहुत अच्छे उर्दू के टीचर हैं, वो बयान करते हैं, कहते हैं मैंने ना एक शख्स से बात की कि भाई साहब आप बुक्स पढ़ते हैं, MIK बहुत एक बड़ा इदारा है, बुक्स छापता है वो, तो कहते मैंने उनसे बात की कि आप बुक्स पढ़ते हैं, कहते नहीं जी मेरे पास बुक्स पढ़ने, MIK को जानते, कहते मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता और मैं बुक्स नहीं पढ़ता, मैं तो कई दफा होता है मैं बाइबल भी नहीं पढ़ता। वो शख्स बयान करते खादिम थे खुदा के। तो कहते मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये शख्स जो है, चलो बाइबल एक किताब जो नहीं पढ़नी वो एक अलग बात है, ये शख्स अपनी खिदमत में इस कदर मगन है, इस कदर जो है कदर मसरूफ हो चुका है कि इसके पास
खुदा के कलाम को पढ़ने का भी टाइम नहीं। तो कहते मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि किस तरह जो हम अपने बचाने की चक्कर में होते हैं, अपनी खिदमत में लगे हुए हैं, मिनिस्ट्रीज को चलाने के चक्कर में होते हैं, और हमारा जो टाइम है वो खुदा को देने के लिए बहुत कम टाइम होता है। लेकिन खुदा चाहता है, क्योंकि वो मालिक है, उसने हमें बचाया है, उसने हमें बुलाया है, तो वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और उसकी जो दी हुई खिदमत है, जो वो मेहनत हमसे लेना चाहता है, वो तवक्को करता है, उसको हम करें। ये कलाम की तैयारी भी हो सकती है, और क्योंकि अगर हम खुदा से उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, खुदावंद से नहीं सुनेंगे कि वो क्या काम लेना चाहता है, वो क्या हमें कलाम हमारे साथ करना चाहता है, तो किस तरह हम दूसरों तक उसके मैसेज को पहुंचा सकेंगे। अगर तो सिर्फ रटा रटाया जो है वो कहीं से देखकर हमने कलाम सुना दिया, कहीं से किसी तरह से भी कलाम सुना दिया, तो ये तो एक कॉपी क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट करना वाली बात हो जाती है। तो खुदा चाहता है कि मुझसे डायरेक्ट वो मुझसे मैसेज ले, ताकि लोगों को सुना सके। तो जरूर है कि हम मेहनत करें, क्योंकि एक ज़र खरीद गुलाम जो है, जिसको खुदावंद ने खरीदा हुआ है, हम उसकी मलकियत है। तो खुदा चाहता है कि हम मेहनत करें, और मसीह जिस तरह चाहता है कि उसने हमें खरीदा हुआ है और वो हमारा मालिक है, क्योंकि कलाम भी कहता है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। तो एक शख्स जो ये बयान करता है, कहता है कि मैंने ये जाना कि ज़र खरीद गुलाम क्या होता है। अगर उसके मसाइल हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक मालिक जो है, जिसने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है, वो चाहता है कि मेरा मालिक जो है, मालिक भी ये जानता है कि इसकी जो सारी जिम्मेदारी है वो मैंने ली। कई दफा हम परेशान होते हैं, खिदमत में भी परेशान होते हैं कि हाय मेरे मसाइल जो हैं, मेरी जरूरियात को किस तरह जो है वो पूरी होंगी। तो एक मालिक जिसने आपको खरीदा हुआ है, जिसने कीमत अदा करके आपको ले लिया है, गुनाह से आजाद कर दिया है, वो जानता है कि आपकी जरूरियात क्या है, आपके बिल्स क्या है, आपके वसाइल वो आपको मुहैया करेगा। तो जरूर है कि हम उस मालिक पर भरोसा करें, जिसने हमें कीमत से खरीदा हुआ है, जिसके हम ज़र खरीद गुलाम हैं, जो कि जिसकी मर्जी को वो पूरा करता है। एक गुलाम होते हुए हम ज़र खरीद गुलाम है। खुदावंद ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया है, ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। तो कलाम क्या बयान करता है कि अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए। हम ऐसे नहीं है कि जिस तरह एक किसी को वैसे रख लिया काम के लिए, नहीं, बल्कि इसके लिए एक बड़ी कीमत अदा की गई है, जो कि यीशु मसीह का खून है। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। तो जरूर है कि हम उस मालिक पर भरोसा करें, उस पर ट्रस्ट करें, जो उसने हमें काम दिए हैं, उसमें हम वफादार हो जाएं, हम अपनी जिंदगी को उसके सुपुर्द कर दें कि अखराजात, हमारी हर चीज को वो पूरा करेगा। वो जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि जो खुद बैठा रहे और ख्याल ही ना हो उसको, एक अपने काम करने वाले का ख्याल ना हो, बल्कि वो ऐसा मालिक है, ऐसा आता है, जिसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई है कि हमारी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। लेकिन हमें उसका काम करना है, हमें उसके हुजूर में उसकी खिदमत करनी है, उसके नाम को जलाल देना है, उस पर ट्रस्ट करना है, अपनी जरूरियात को उसको बताना है। तो खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, क्योंकि हम उसके खरीदे हुए लोग हैं। तो हमें उस पर भरोसा करना है, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में से इज्जत और जलाल पाता रहे। इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आमीन, आमीन।